السلام علیکم ایوری ون. بہت جب سے میں نے اعلان کیا ہے تب سے کافی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ہم بھی اس چیز پہ بہت محنت کر رہے ہیں جو ہی فیلڈ میں نہیں ہے, نارمل بھی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لیزی ہو جاتے ہیں یا کبھی کچھ ہو نہیں پاتا. تو آپ یہ کیسے کر پاتی ہو اور اس کی کنسسٹنسی کیسے مینٹین کر پاتی ہو؟ کرنے والے تو ہم کوئی نہیں ہے, کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں, ہر نماز میں دعا کے وقت پڑھتی ہوں, نماز کے بعد پڑھتی ہوں, کبھی بھی بیٹھے رہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں. تو میں نے سوچا یہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو آپ چاہے تو میرے پیچھے بھی ایک بار بول سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور یہ آپ جتنا ہو سکے آپ اتنا پڑھے, جب آپ دعا مانگتے ہو اس وقت پڑھے. کیونکہ دیکھیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں لائف میں اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے ہمیں اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور قربانیاں دینی پڑتی ہے. تو اگر آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر خوب محنت کریں اور قربانیاں دیجیے. بیکاز بنا قربانی کے ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملتا. چاہے وہ آپ کی نیند کی قربانی ہو یا آپ کے کچھ نہ کچھ ہم سیکریفائس کرتے ہیں کہ آج کبھی ہم پرسنل لائف میں, کیونکہ آج ہمارے ایگزامز ہے یا کچھ ہے تو آج ہم ہمارے لوگوں کو اس فنکشن میں اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ کل یہ دینا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جیسے ہم ان چیزوں کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں ویسے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے دین کی طرف بھی اتنی توجہ دیں اور اس کے اوپر محنت کریں. کیونکہ جو انسان محنت کرے گا وہ دنیا میں تو کامیاب ہوگا ہی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. So let me share some shocking facts about Quran. It has 6,000 verses, in which angel and devil is mentioned 88 times. The word day is mentioned 365 times. The word month is mentioned 12 times. The word punishment is mentioned 117 times, whereas the word mercy, forgiveness, is twice that, 234 times, showing you the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. It was revealed over the course of 23 years by the man who couldn't read or write, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شیطان کہتا ہے جو آخرت میں مان جائیں گے میں ان کا کیا کروں گا, ومن خلفہم, میں ان کے لیے دنیا اتنی خوبصورت بنا دوں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ آخرت کا خوف رہے گا. السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ کو خوابوں کے بارے میں بتاؤں گی. بہت الگ الگ قسم کے خواب ہوتے ہیں. ایک خواب جو ہوتا ہے اچھا خواب وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, دوسرا ہوتا ہے گندا خواب جو شیطان کی طرف سے آتا ہے, اور تیسرا ہوتا ہے وہ خواب جو آپ سونے سے پہلے کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, آپ کا ذہن اسی چیز میں رہتا ہے تو آپ سپنے میں وہی چیز دیکھتے ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت پڑھنی چاہیے اور سو جانا چاہیے. ایسے اور بھی بہت بار ہوتا ہے جب ہم رات کو کوئی ڈراونا خواب دیکھ لیتے ہیں یا ہم چونک کر اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں الٹی طرف منہ کر کے 3 بار تھوکنے کی صورت کرنی چاہیے, تھو تھو تھو, ایک امیجنری, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھی طرف مڑ کے سو جانی چاہیے. اور سب سے ضروری بات کہ جب آپ برا خواب دیکھیں آپ اسے کسی سے شیئر نہ کریں. اخرجت للناس, you and I have been created for the betterment of mankind. So ya Allah, what do we do? تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, with your actions and your word and your speech go and tell everyone what pleases me. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, and again with your actions and words and your speech go and tell people what displeases me. And if you do so, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, it will increase your iman, it will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा, वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्क़त के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्क़त होती है ना उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्क़त होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं, मुझे भी होती है। तो वो तकलीफ़ होती है तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्यों, मुशक्क़त की वजह से। तो क्या होता है थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्क़त का वक्त तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है। और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई और आप देख रहे हो आज जो मैं मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़ इस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें तो इससे अच्छा क्या ही बात होगी।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने ऐसी कुर्बानियाँ दी गई है जो क़यामत तक का कभी वापस नहीं दी जाएगी। मुहर्रम में बहुत सारे नबियों पे अल्लाह की बहुत मदद भी उतरी है और इसीलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बताती हूँ जो मुहर्रम में हुए हैं। पहला, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई और अम्मा और अब्बा को फिर से मैदान अरफात में मिलाया गया। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूड़ी पहाड़ पे जाके टिकी। तीसरा, मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर गए और फिरौन वहीं डूब गया। चौथा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और अल्लाह ने उनकी खूब हिफाजत की। पांचवा, हमारे सबसे अहम सहाबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शहादत हुई। और आखिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी पूरी फैमिली की कुर्बानी दी गई। तो ये एक ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स और ऐसी सारी कुर्बानियां हैं जो हमें मरते दम तक का हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सबसे अहम बात क्या थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को ऑलरेडी इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती है, लेकिन तो भी करबला के मैदान पे जंग के वक्त जानते हुए कि इतने सारे लोग हैं और जंग है, तो भी उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उम्मत को यही पैगाम देना चाहते थे कि जो भी हो नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये सबसे 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 अहम बात है कि कुछ भी हो जाए, दीन और सच्चाई का रास्ता और जो नमाज है वो सबसे ऊपर है। एंड हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए कि हम अपनी नमाज ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासे है और उनकी जो खानदान की कुर्बानी है तब जाके सही मायने में पूरी होती है। तो आई होप कि हम सब इन कुर्बानियों को अपने जहन में रखें और साथ ही साथ जो इससे एक मैसेज दिया गया है वो कभी ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यौम आशुरा यानी 10वां मुहर्रम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन हमें खूब तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रम जो है अल्लाह का दिन है और इसी दिन में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की कौम की तौबा कबूल अता फरमाई थी और इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो आगे की कौमों की भी तौबा कबूल अता फरमाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि हमें आशुरा के दिन की रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी फजीलतें उस रोज़े से जुड़ी हुई है और इंशाल्लाह ये एक दिन का रोज़ा आपके पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और ये रोज़ा आपको जब रखना है तो आपको 9वां और 10वां रोज़ा रखना है, दो रोज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी भी वजह से आपका दूसरा 9वां रोज़ा छूट गया है तो आप 10वां और 11वां रोज़ा रख सकते हैं। तो आप उसे रखिए और खूब तौबा इस्तगफार करिए दोनों रोज़े के दिन। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि 10वें आशुरे के दिन हमें अपने घर वालों पे दिल खोल के खर्चा करना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें पूरे साल की रोज़ी में खूब बरकत नसीब अता फरमाते हैं। तो आप दोनों रोज़े रखें, खूब तौबा इस्तगफार करें और अपने घर वालों पे दिल खोल के खर्चा करिए 10वें आशुरे के दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा नया साल शुरू हो चुका है इस्लामिक, और क्योंकि हम सब चांद के मुताबिक चलते हैं तो इस्लाम के हिसाब से हमारा पहला साल का पहला दिन कल होगा और इस पहले महीने को मुहर्रम कहा जाता है। और हम सब जानते हैं कि मुहर्रम में बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। इंशाल्लाह इसके बारे में बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साल हमें ये एक दुआ पढ़ के शुरू करनी चाहिए और ये दुआ इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हमारा ये जो आने वाला साल है बहुत सारी खुशियों, बरकतों, सलामतों और आफियत के साथ गुजरे। और जब ये साल शुरू होता था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम ये दुआ एक दूसरे के साथ पढ़ते थे और एक दूसरे को सिखाते थे। मैं ये दुआ देख के पढ़ूंगी क्योंकि मैं खुद इसे बाय हार्ट नहीं कर पाई हूँ अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम व रिजवानिम मिनर रहमान व जीवारिम मिनश शैतान। इसका ये मतलब है कि या अल्लाह ये आने वाला साल जो है हमें हम पे आपकी रहमत रखना और हमारी शैतान से हिफाजत करना, हमारे इस्लाम को मजबूत करना, हमारे ईमान को मजबूत करना और
اللہ کے مطابق جیسی ان کی مرضی ہوتی ہے اور ان کی خوشی کے حساب سے یہ سال ہمارا گزرے. تو آئی ہوپ کہ آپ سب یہ ایک بار پڑھ لیں, اور جو یہ دعا ہے میں لکھ کر اسٹوری میں بھی ڈالوں گی تاکہ آپ اسے اسکرین شاٹ لے کر خود بھی پڑھ سکیں. یہ تو میں نے صرف بولنا کیسا اس کے لیے ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہے. باقی نیا سال آپ سب کو مبارک ہو, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اچھے سے گزرے. السلام علیکم ایوری ون. آج میں آپ کو نماز کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گی, اور آئی ایم شیور ہم سب کو پتا ہوگا, لیکن ایک ریویژن کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. تو لیکن میں اب جو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ نمازیں چھوڑتے ہو یا وقت پہ نہیں پڑھتے ہو تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے, اور یہی چیز اگر آپ کر لیں تو اس سے یہی چیز فائدے میں بدل جاتی ہے. تو پہلا, فجر کی نماز جو انسان جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے چہرے سے صلاح کا نور ختم کر دیتا ہے. دوسرا, جو انسان ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے. جو انسان عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کے جسم کو طاقت کو سلب کر لیتے ہیں, وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور بیماریوں میں گھرا رہتا ہے. اگر کوئی مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے تو اسے اپنی اولاد سے کوئی نفع نہیں ہوتا. اگر جو انسان عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے اسے راحت اور سکون والی نیند کبھی نہیں ملتی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ساری نماز پڑھیں اور وقت پہ پڑھیں اور اس کی پوری پوری برکت اور فضیلت کو حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی چیز کی کمی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں فلانا چیز نہیں ہو رہی ہے یا یہ چیز نہیں ہو رہی, تو ہم یہ سمجھے کہ ایسی کون سی چیز یا ایسی کون سی نماز ہے جو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پہ یہ آفتیں آئی ہوئی ہے, اور اس سے بچیں اور نماز پڑھیں.